نبی خدا حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ۔ ابن بابویہ اور کتب راوندی نے حضرت ہود علیہ السلام کا شجرہ نسب کچھ اس طرح بیان کیا ہے: ہود بن عبداللہ بن ربا بن حلوس بن عاد بن اوز بن ارم بن سام بن نو علیہ السلام۔ ابن بابویہ نے کہا ہے کہ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان خیریت سے ہوں۔ اور انشاءاللہ جس ویڈیو پروڈکشن دے رہے ہیں بڑی امپورٹنٹ بڑی بہترین ویڈیو، آج ہم جانیں گے انشاءاللہ جاتا حضرت ہود علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر تھے، بہترین پیغمبر تھے، ان کے بارے میں ہم پوری تفصیل سے جانیں گے، ان کی پیدائش سے لے کے ان کی وفات تک کے جانیں گے ہم اس ویڈیو کے ذریعے سے۔ تو دوستو ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور جتنا ہو سکے دوستو مجھے سپورٹ کرنے کی ویڈیو کو شیئر کریے۔ میرے چینل پہ جو بھی حضرات نئے آتے ہیں وہ سبسکرائب کیا کریں، اور اپنی قیمتی رائے کمنٹ باکس میں ضرور بتایا کریں، اور ویڈیو کو ایک لائک کر دیا کریں برائے اس لیے کہ ہم لوگ ویڈیو بناتے ہیں دوستو، بڑی اس میں محنت لگتی ہے، بڑا وقت برباد ہوتا ہے، تب جا کے ایک ویڈیو بنتی ہے۔ تو آپ لوگوں کا سپورٹ رہے گا تو ہمیں موٹیویشن ملتا ہے، ہمیں ہمت ملتی ہے، ہمیں حوصلہ ملتا ہے کہ ہاں میری ویڈیو دیکھی جا رہی ہے، پسند کی جا رہی ہے، شیئر کی جا رہی ہے، کمنٹ کیا جا رہا ہے، اور جتنا ہو سکے مطلب سپورٹ کرنے کے لیے آگے آپ کی مرضی ہے۔ تو چلیے ہم لوگ جانتے ہیں حضرت ہود علیہ السلام کا پورا واقعہ جانیں گے اس ویڈیو کے ذریعے سے۔ تو ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ نبی خدا حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ۔ ابن بابویہ اور کتب راوندی نے حضرت ہود علیہ السلام کا شجرہ نسب کچھ اس طرح بیان کیا ہے: ہود بن عبداللہ بن ربا بن حلوس بن عاد بن اوز بن ارم بن سام بن نو علیہ السلام۔ ابن بابویہ نے کہا ہے کہ حضرت علیہ السلام کو اس لیے ہود کہتے ہیں کہ آپ اپنی قوم میں اس امر کے ساتھ ہدایت یافتہ تھے جس سے قوم گمراہ تھی۔ بسند معتبر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے اپنے اطاعت گزار ساتھیوں کو طلب کیا اور فرمایا کہ یاد رکھو کہ میرے بعد حجت خدا کی غیبت کا زمانہ ہے جس میں باطل پیشواؤں اور ظالم بادشاہوں کا غلبہ ہوگا، اور خداوند عالم تم سے اس شدت کو میرے ایک قائم کے ذریعے سے رفع کرے گا جس کا نام ہود علیہ السلام ہوگا۔ وہ پسندیدہ حیت اور اخلاق حمیدہ اور وقار کا حامل ہوگا اور مجھ سے خلق و صورت میں مشابہ ہوگا۔ جب وہ ظاہر ہوگا خداوند عالم تمہارے دشمنوں کو ہوا کے ذریعے سے ہلاک کرے گا۔ اس لیے مومنین برابر حضرت ہود علیہ السلام کے آنے کا انتظار کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک طویل مدت گزر گئی اور بہت سے لوگ گمراہ ہو گئے۔ اس وقت خدا نے ہود علیہ السلام کو ظاہر فرمایا جبکہ وہ لوگ نا امید ہو چکے تھے اور ان پر بلائیں شدید ہو گئی تھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کو باد عقیم کے ذریعے سے ہلاک کیا جس کو قرآن میں ذکر فرمایا ہے۔ باد عقیم ایسی تیز اور سرد ہوا کو کہتے ہیں جو کہ فصلوں اور صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوتی ہے۔ ابن بابویہ اور کتب راوندی نے وہب سے روایت کی ہے کہ جب ہود علیہ السلام کی عمر 40 سال ہوئی تو خدا نے ان کو وحی فرمائی کہ اپنی قوم کو میری عبادت اور وحدانیت کی دعوت دو، اگر وہ قبول کریں گے تو ان کی قوت اور مال میں اضافہ کروں گا۔ وہ لوگ ایک روز ایک مقام پر جمع تھے، اس وقت ہود علیہ السلام ان کے پاس آئے اور کہا کہ خدا کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اے ہود تم ہمارے نزدیک قابل اعتماد اور امین تھے۔ آپ نے فرمایا میں تمہاری طرف خدا کا بھیجا ہوا آیا ہوں، بتوں کی پرستش ترک کرو۔ ان لوگوں نے جب آپ کا کلام سنا تو غضبناک ہو کر آپ کی طرف دوڑے اور آپ کا گلا دبانا شروع کیا، یہاں تک کہ جب آپ مرنے کے قریب پہنچ گئے تو چھوڑا۔ حضرت ہود علیہ السلام 24 گھنٹے تک بے ہوش پڑے رہے۔ جب ہوش آیا تو عرض کی کہ پروردگارا جو کچھ تو نے حکم دیا میں نے تعمیل کی، اور جو کچھ ان لوگوں نے کیا تو نے دیکھ لیا۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم بد دل اور رنجیدہ ہو گئے اور اپنی قوم کی ہدایت میں سستی اختیار کی، حالانکہ میں نے وعدہ کیا ہے کہ تمہارا خوف ان کے دلوں میں ڈال دوں گا، پھر وہ لوگ تمہارے زدوں کو پر قادر نہ ہو سکیں گے۔ یہ سن کر ہود علیہ السلام پھر اپنی قوم کی طرف آئے اور کہا تم لوگوں نے بہت فساد اور سرکشی اختیار کی ہے۔ ان لوگوں نے کہا ہود علیہ السلام ان باتوں کو ترک کرو ورنہ اس مرتبہ تم کو ایسی اذیت دیں گے کہ پہلی تکلیف بھول جاؤ گے۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا سرکشی سے باز آؤ اور اپنے پروردگار سے توبہ کرو۔ پھر تو ان کے دلوں میں ہود علیہ السلام کا رعب اور خوف قائم ہو گیا۔ انہوں نے سمجھا کہ اب ہم لوگ ہود علیہ السلام کی زدوں کو پر قادر نہیں ہیں، لہٰذا تمام قوم نے مل کر آپ کی تکلیف پر کمر باندھ لی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان لوگوں میں نعرہ بلند کیا جس کی شدت اور دہشت سے وہ لوگ دور ہٹ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگ بھی نوح علیہ السلام کی قوم کے مانند کفر پر اڑے ہو، جس طرح نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی تھی تم لوگ اسی کے مستحق ہو کہ میں بھی بد دعا کروں۔ ان لوگوں نے کہا نوح علیہ السلام کی قوم کے تمام خدا کمزور و ناتواں تھے اور ہمارے سب خدا مضبوط اور قوی ہیں، اور ہماری طاقتیں بھی تم کو معلوم ہیں۔ ان لوگوں کے قد اس زمانہ کے حساب سے 120 ہاتھ اور جسم کی چوڑائی 60 ہاتھ تھی۔ ان میں کوئی جب چاہتا ایک چھوٹے پہاڑی ٹیلا کو اکھاڑ پھینکتا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان لوگوں کو 700
60 साल दावत खुदाबंदी की। जब खुदा ने चाहा कि उनको हलाक करे, अहकाफ के मैदानों की रेत और पत्थर उनके गिर्द जमा करके टीले बना दिए। यहाँ पे वाज़ेह करता चलूँ कि अहकाफ के रेतले सहराओं के बारे में ख्याल किया जाता है कि ये जजीरा नुमाए अरब के जुनूब में वाक़ है, जो कि मुमकिन तौर पर यमन का मशरकी इलाका या ओमान का मगरबी इलाका हो सकता है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया कि मैं डरता हूँ कि कहीं ये टीले खुदा की तरफ से तुम्हारे लिए अजाब ना हो। गर्ज हज़रत हूद अलैहिस्सलाम उनकी सरकशी के सबब से बहुत रंजीदा हुए। उन टीलों ने आपको आवाज़ दी कि आप खुश हों कि कौम आद पर हमारे जरिए से एक रोज़े बद आएगा। जब हूद अलैहिस्सलाम ने ये आवाज़ सुनी तो फरमाया कि ऐ मेरी कौम, खुदा से डरो और उसकी इबादत करो। अगर ईमान ना लाओगे तो ये पहाड़ और टीले सब के सब तुम्हारे लिए खुदा का अजाब और गजब हो जाएंगे। उन लोगों ने यह सुनकर टीलों को खोदकर हटाना चाहा, लेकिन जिस कदर वो हटाते थे टीले और ज्यादा जमा होते जाते थे। आखिर हूद अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि परवरदिगारा, तेरी रिसालत जिस कदर पहुंचाता हूँ उनका कुफ्र ज्यादा ही होता जाता है। खुदा ने उनको वही की कि मैं उनसे बारिश रोके देता हूँ। हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया कि खुदा ने मुझसे वादा किया है कि तुम लोगों को हलाक कर देगा। आपकी ये आवाज तमाम पहाड़ों तक पहुंची, यहाँ तक कि तमाम दरिंदों, वैशियों और परिंदों ने भी सुना, और हर जिन्स के जानवर आपके पास हाजिर हुए और गिरिया किया और कहा, क्या आप हमको भी नाफरमानों के साथ हलाक कर देंगे? ये सुनकर हूद अलैहिस्सलाम ने उनके लिए बारगाह खुदा में दुआ की। खुदा ने वही फरमाई कि मैं उसको हलाक नहीं करूंगा जिसने मेरी नाफरमानी नहीं की है। अली बिन इब्राहिम ने रवायत की है कि आद कौम हूद अलैहिस्सलाम का एक कबीला था और उनकी आबादी का शुकूक से अखजर तक एक गाँव था। उनके शहर 4 मंजिल के थे और उनके पास खेती बाड़ी और खजूर के बागात थे। उनकी उम्रें दराज और कद बुलंद थे। वो बुतों की परस्तिश करते थे। खुदा ने हूद अलैहिस्सलाम को उन्हीं लोगों पर मबूस फरमाया था कि उनको इस्लाम की दावत दें और बुत परस्ती से उनको मना करें। उन लोगों ने इनकार किया और ईमान नहीं लाए और आपको तकलीफ पहुंचाते रहे। लिहाजा खुदा ने 7 बरस तक बारिश उनसे रोक दी, यहाँ तक कि उनमें कहत जाहिर हुआ। हजरत हूद अलैहिस्सलाम खुद भी ज़राअत करते थे और उसके लिए आबकशी किया करते थे। एक बार एक ग्रोह आपके दरवाजे पर आया और आपको पुकारा। एक बूढ़ी औरत बाहर आई जिसके बाल सफेद थे और एक आंख नहीं थी। उसने पूछा कि तुम लोग कौन हो? उन लोगों ने कहा कि हम फलां शहर से आए हैं, खुशकसाली की मुसीबत में गिरफ्तार हैं, इसलिए आए हैं कि हूद अलैहिस्सलाम हमारे लिए दुआ करें कि हमारे शहरों में पानी बरसे। उसने कहा, अगर हूद अलैहिस्सलाम की दुआ मुस्तजाब होती तो वो खुद अपने लिए दुआ करते, क्योंकि उनकी तमाम ज़राअत पानी की कमी की वजह से खुश्क हो गई है। उन लोगों ने पूछा कि इस वक्त वो कहाँ हैं? औरत ने जवाब दिया कि फलां मकाम पर हैं। वो लोग आप हजरत अलैहिस्सलाम की खिदमत में आए और कहा, ऐ पैगम्बर खुदा, हमारे शहर खुश्क हो गए हैं, पानी नहीं बरसता है। खुदा से दुआ कीजिए कि वो हमें बाराने रहमत से नवाजे और हमको नेमतें फरावां अता फरमाए। हूद अलैहिस्सलाम ये सुनकर नमाज के लिए तैयार हुए और नमाज पढ़कर उनके लिए जब दुआ कर चुके और उनसे फरमाया कि वापस जाओ कि खुदा ने तुम्हारे लिए बाराने रहमत नाजिल किया और तुम्हारे शहरों में फरावानी हासिल हुई। हजरत हूद अलैहिस्सलाम अपनी कौम में मौजूद रहे और उनको खुदा की तरफ दावत देते रहे और बुतों की परस्तिश से रोकते रहे। कहते थे कि बुतों की परस्तिश तरक करो और खुदाए वाहिद की इबादत करो ताकि तुम्हारे शहरों की आबादी में तरक्की हो और खुदा तुम पर बारिश नाजिल करे। लेकिन वो लोग ईमान नहीं लाए तो खुदा ने उन पर नहायत सर्द और तेज हवा भेजी, जिसको उन पर 7 रातें और 8 रोज तक कायम रखा। ये हवा कौम आद को उठाकर इस कदर बुलंद करती थी कि वो एक टिड्डी के मानंद मालूम होते थे और फिर उनको सर के बल पहाड़ों पर पटकती थी, जिससे उनकी हड्डियां चूर चूर हो जाती थी। इसको रोकने के लिए उन लोगों ने इमारतें और मजबूत दीवारें बनाई थी। जब उनमें वो लोग दाखिल होते थे तो उनके पीछे हवा भी दाखिल होती थी और उनको बाहर निकालकर उड़ा ले जाती थी। नाजरीन, इस बादे अकीम के बारे में मुख्तलिफ रवायात मिलती हैं जिनसे हम आपको आगाह करते हैं। नाजरीन, ये बादे अकीम किस कदर खौफनाक थी, इसके बारे में मुख्तलिफ रवायात मिलती हैं। हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम से मनकूल है कि बादे अकीम जिसको खुदा ने कौम आद के लिए भेजा था वो अजाब की एक हवा है जिसमें रहम की बिल्कुल गुंजाइश नहीं, इससे किसी गाज की निशोनमा तक नहीं होती। वो जमीन के 7वें तबका से बरामद हुई थी। वो हवा कभी जाहिर नहीं हुई सिवाय उस वक्त के जबकि कौम आद पर खुदा ने गजब फरमाया। उस वक्त भी खजीनादारों को हुक्म था कि इस हवा को सिर्फ अंगूठी के साइज जितना बाहर निकालें, लेकिन वो कौम आद पर गजबनाक होकर गाय के दिमाग के बराबर बाहर आ गई। खाजनों ने दरगाह बारी में अर्ज की कि खुदावंदा, इस हवा ने हमसे सरकशी की, हमको खौफ है कि इससे कहीं तेरे वो बंदे जो गुनाहगार नहीं है और जिनसे तेरे शहरों की आबादी है हलाक ना हो जाएं। उस वक्त हक ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा कि इसको अपने परों से वापस करें और जिस कदर हुक्म है उसी कदर बाहर रहने दें। लिहाजा जिस कदर की खुदा की मशीयत थी उसके अलावा तमाम हवा वापस की गई और उसी बाकी मांदा हवा ने कौम आद और उनके करीब के लोगों को हलाक किया। हदीस हसन में मनकूल है कि खलीफा मोतसम के हुक्म से बतानिया में 300 कद की लंबाई का गहरा एक कुआं खोदा गया, लेकिन पानी ना निकला। उसने तर्क कर दिया और दूसरा कुआं ना खुदवाया। जब मुतवक्किल खलीफा हुआ तो उसने भी हुक्म दिया कि कुआं खोदा जाए जब तक के पानी ना निकले। कुआं खोदना शुरू किया गया। हर 100 कद पर एक चरख कायम करते गए। आखिर में एक पत्थर तक पहुंचे। जब उसको तोड़ा तो वहां से नहायत सर्द हवा निकली जिसने हर एक को जो उस कुएं के करीब था हलाक कर दिया। ये खबर मुतवक्किल को पहुंची, जिसको सुनकर वो और उसके पास जितने उलमा थे सब हैरान हुए और कुछ ना समझ सके। आखिरकार इस बारे में इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की खिदमत में खत लिखा गया। हजरत अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ये सब अहकाफ के शहर हैं जिनमें कौम आद आबाद थी। हक ताला ने जिनको तेज और सर्द हवा के जरिए से हलाक किया था। उस कौम के पैगंबर हजरत हूद अलैहिस्सलाम थे। उनके तमाम शहर आबाद और नेमतों से भरपूर थे। उसके बाद कौम की नाफरमानी और बारिश का बंद होना वगैरह बयान करके फरमाया कि जब अजाब का वक्त
आया, लोगों ने देखा कि एक बादल आ रहा है। वो लोग खुश हुए और कहने लगे कि अब पानी बरसेगा। हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, बल्कि ये वही अजाब है जिसको तुम लोगों ने खुद उजलत के साथ तलब किया है। हजरत अली अलैहिस्सलाम से मनकूल है कि हवाएं 5 किस्म की हैं, उनमें से एक अकीम है जिसके शर से हम खुदा की पनाह मांगते हैं। इब्ने बाबविया ने वहब से रवायत की है कि बादे अकीम इसी जमीन में है जिस पर हम आबाद हैं। वो 70,000 आहनी जंजीरों से बंधी हुई है और हर जंजीर पर 70,000 फरिश्ते मुवक्कल हैं। जब हक़ ताला ने इस हवा को कौम आद पर मुसल्लत किया, उसके निगहबानों ने इस हवा को इस कदर बाहर करने की इजाजत तलब की जितनी के गाय के दिमाग से निकलती है। अगर खुदा इजाजत दे देता तो वो जमीन की किसी चीज को बगैर जलाए ना छोड़ती, लेकिन हक़ ताला ने उसके मुवक्किलों को वही की कि उसको अंगूठी के सुराख के बराबर बाहर निकालें। इसी हवा से कौम आद हलाक हुई और इसी हवा से खुदावंद आलम इब्तिदाए क़यामत में पहाड़ों, टीलों, शहरों और कसरों को गिराकर जमीन के बराबर कर देगा। इसको अकीम इसी सबब से कहते हैं कि अजाब पैदा करने वाली और रहमत से खाली है। बसनद मोतबर अली बिन यकीन से मनकूल है कि मंसूर दवानिकी ने यकीन को एक आबिद के कसर में कुआं खोदने का हुक्म दिया। यकीन उसके खोदने में मशगूल हुआ और मुद्दतों खुदवाता रहा, यहाँ तक कि मंसूर का इंतकाल हो गया, लेकिन उस कुएं से पानी ना निकला। जब महदी को इसकी इतला हुई, उसने कहा कि जब तक पानी ना निकलेगा मैं इसको यकीनन खुदवाता रहूंगा, खा तमाम बैतुल माल सरफ हो जाए। तो यकीन ने अपने भाई अबू मूसा को तैनात किया। वो कुआं खुदवाने में मशगूल हुआ और इस कदर खुदवाया कि जमीन की तह में सुराख हो गया। उस जगह से एक हवा निकली। खोदने वाले डरे और ये कैफियत अबू मूसा से बयान की। वो कुएं के पास आया और कहा कि मुझको इसके अंदर उतारो। कुएं की कुशादगी 40 हाथ थी। एक महमल रस्सियों से बांधा गया, उसमें अबू मूसा को बिठाकर लोगों ने कुएं के अंदर उतारा। जब वो कुएं की तह में पहुंचा, उस सुराख से उसको सख्त खतरा महसूस हुआ। उसने उसके नीचे हवा की आवाज सुनी, हुक्म दिया तो सुराख को बड़ा किया गया और 2 शख्सों को एक महमल में बिठाकर उसके नीचे की खबर लाने के लिए सुराख के अंदर उतार दिया। वो दोनों एक अरसा तक उसके अंदर रहे, फिर रस्सियों को हरकत दी तो महमल को ऊपर खींचा गया। उन दोनों ने बयान किया कि हमने अजीब अमूर मुशाहिदा किए हैं। मर्दों को देखा जो सब पत्थर हो गए हैं, उनके मालो ज़रूफ और मकानात हर शय पत्थर की है। मर्दों औरतें लिबास पहने हुए हैं, बाज बैठे हैं, बाज एक पहलू से सो रहे हैं और बाज तकिया लगाए हुए हैं। जब हमने उनके कपड़ों को हाथ लगाया तो वो गुबार की मानद हवा में उड़ गए। उनके मकानात अपने हाल पर बाकी हैं। अबू मूसा ने यह कैफियत महदी को लिखकर भेजी, जिसको सुनकर तमाम उलमा हैरत में गर्क हो गए और किसी की समझ में कुछ ना आया। आखिर महदी ने मदीना में खत भेजा और हजरत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को इस मुश्किल के हल के लिए तलब किया। वो हजरत इराक तशरीफ ले गए। महदी ने यह वाकया आपकी खिदमत में अर्ज किया। ये सुनकर आप बहुत रोए और फरमाया कि ये सब कौम आद की बाकियात हैं। खुदावंद आलम ने उन पर गज़ब फरमाया। वो अपने मकानात के समेत जमीन में धंस गए और ये असहाबे अहकाफ हैं। महदी ने पूछा कि अहकाफ क्या है, तो आपने फरमाया रेत। नाज़रीन, वीडियो के आखिर में आपको बताते हैं कि हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक कहाँ है। बहुत सी रवायात के मुताबिक हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कब्र यमन के एक सहराई गाँव हजरमौत में वाक़ है। एक और रवायत के मुताबिक हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कब्र सऊदी अरब में जमजम के कुएं के करीब मौजूद है। इसी तरह एक और रवायत के मुताबिक आपकी कब्र शाम की उमैया मस्जिद की जनूबी दीवार के पास है। तो दोस्तों, ये था हमारा रिएक्शन जो हमने देखा हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का पूरा वाक़या हमने उन्हें तफसील से जान लिया। उनकी वफ़ात के बारे में देखिए जो हमें बताया गया, अलग अलग 3 बताया गया है कि जमजम कुएं के पास और जो भी उन्होंने नाम लिया गया। तो अब ये अल्लाह बेहतर जाने कि इनकी सही कब्र कहाँ पर है, अल्लाह ही बेहतर जाने। बहरहाल ये था हमारा रिएक्शन जो आपको उम्मीद अच्छी लगी। दोस्तों, मेरे चैनल पे आपको तमाम पैगंबरों के बारे में वीडियो मिलेगी आपको, और तमाम बुज़ुर्गान दीन की वीडियो मिलेगी। आप दीन से जुड़ें दोस्तों, क्योंकि दीन से मुसलमान कौम बड़ी दूर होती जा रही है। दीन के बारे में मालूमात करें और यह सबसे ज़रूरी है दोस्तों। इस वक्त के जो हालात चल रहे हैं हम सब देख ही रहे हैं, तो जितना हो सके दीन फैलाएं। दीन फैलाने में हर एक दूसरे की मदद करें, अच्छी बातें हमेशा शेयर करें। मोबाइल में जो भी वक्त बिताएं अपना सिर्फ दीन के टॉपिक से बातें सुने, उसमें उस पर अमल करने की कोशिश करें। उल्टे चीज़ देखने से कुछ भी फ़ायदा नहीं दोस्तों, और आधी रात तक के मोबाइल बिल्कुल भी ना चलाएं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखें, अच्छी बातें हमेशा शेयर करें। तो इंशाल्लाह ने चाहे हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।